Bismillahirrahmanirrahim. My name is Somia Clark and my roll number is 47. I'm the student of MSCS first semester. Today I am going to present the improving existing interface design of the University of Lahore. The points I am going to discuss today in my presentation is the first one is the heuristic evaluation, second one is website redesigning, third one is accepted and not accepted response, and the fourth one is self-critic. ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन बेस करती है 10 पॉइंट्स के ऊपर. फर्स्ट वन इज़ विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. नो एक्टिव मेन्यू आइकन आइटम्स आर वर्किंग इन द वेबसाइट. Loading processor bar is also missing. Loading animations are not available, and step wizards are also not available in the website. So my recommendation is that there should be a loading animation and loading process bar in the website. Second point है match between system and the real world. Icons are available for the better understanding of the visitor, but the cropping tool behavior functionality is not available on the website. Language of the website is understandable and all the categories are well named. Drop-down lists are also available in the website. Now the third point is user control and freedom. In user control and freedom, we mostly talk about the CRUD functionality. CRUD means create, read, update, and delete. It is not available in the website. It is totally managed by the administrator of the site. Fourth point है जी consistency and standards. According to my point of view, no consistency is maintained between the different pages of the website because the multicolor tabs are used for the different options. There are not no any underlying hyperlinks, and updates are also not available on the website. Fifth point है error prevention. एरर प्रिवेंशन में जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक जो है वो डायलॉग बॉक्स कंफर्मेशन के लिए ऐड होना चाहिए, जो कि जो है कि डू यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, दिस टाइप का जो है एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग एनी फॉर्म. तो वो जो है ये अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर. According to my recommendation, there should be a confirmation message dialog box added in before submitting any kind of form. Sixth point है recognition rather than recall. जब इसमें साइट में मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसमें साइट वाइड नेविगेशन जो है वो मिसिंग है. जब हम किसी पेज पर जाते हैं होम पेज से, तो दोबारा होम पेज पे आने के लिए जो है वो हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. हमें जो है वो देयर शुड बी टैब ऑफ होम पेज या फिर जो है बैक टू प्रीवियस पेज का कोई टैब जो है वो इसके ऊपर इंक्लूड होना चाहिए. सेवन्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. Website contains data flexibility and efficiency. There are autofill options are available in the website, which is better for the user point of view. एट्थ पॉइंट जो है वो है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन. जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के होम पेज को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऐड की गई है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो एक जो है वो बहुत मैसी सा इफ़ेक्ट पैदा करता है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए मोर आइकन्स और जो है वो ऐड करने चाहिए और अननेसेसरी डिटेल को सब सेक्शंस में हैंडल करना चाहिए. नाइन्थ पॉइंट है हेल्प यूज़र रिकग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर. वेबसाइट डजेंट कंटेन एनी ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम फॉर द यूज़र. According to my recommendation, there should be an online chat box system that interact with the user and answer user queries. And the last point is help and documentation. There should be a feedback form for the user. जब यूज़र की फीडबैक से जो है वो बेसिकली एरर्स और जो है वो लिमिटेशंस का पता चलता है. जब तक फीडबैक फॉर्म नहीं होगा वेबसाइट में मौजूद जो है वो एरर्स को जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकेगा और ना ही उनको रिपेयर किया जा सकेगा. अब जो है वो है वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग.
वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग जो है, माय वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑल द पॉइंट्स दैट नीड टू बी करेक्टेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये पेज जो है ये मैंने रीडिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। इसमें सबसे ऊपर मैंने होम पेज का टैब एंटर किया है, ऐड किया है, सर्च टैब ऐड किया है, जो कि पहले किसी भी पेज पर सर्च टैब अवेलेबल नहीं था। इन ऑर्डर टू रीच द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद जो है हम जब अबाउट यूओएल पे आते हैं, तो जब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैंपसेस का, फिर डिस्कवर यूओएल, लाइफ एट यूओएल और रिसर्च। जब हम कैंपसेस के टैब पे क्लिक करते हैं तो मैंने इन सारे जो है कैंपसेस को एक पेज पे कंबाइन किया है। जैसे लाहौर कैंपस है, उसकी उसकी डिटेल्स शो होगी। उसके बाद फिर सरगोदा कैंपस, गुजरात सब कैंपस और पाकपतन कैंपस। जब मैं लाहौर कैंपस पे क्लिक करती हूँ, जब हम लाहौर कैंपस पे की पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लाहौर कैंपस की हिस्ट्री और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद जब हम साइट मैप, एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मे पे क्लिक करेंगे तो लाहौर कैंपस का जो साइट मैप है वो आ जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नीचे उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो और ईमेल एड्रेस सामने आ जाएगा। इसी तरह सरगोदा कैंपस और पाकपतन और गुजरात कैंपस का भी को भी इसी तरह से हैंडल किया गया है। जब हम कैंपस पे की पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसकी जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ जाती है। और जब हम साइट मैप और एड्रेस वगैरह पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सिटी उसके में सब कैंपस का साइट मैप और इसकी जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फो और ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो हमारे सामने आ जाता है। उसके साथ साथ मैंने एक टैब ऐड किया, गो टू मेन साइट। गो टू मेन साइट का टैब हमें उस पर्टिकुलर कैंपस के जो है वो वेबसाइट पे लेके जाता है। होम पेज हमें जो है वो हमारी वेबसाइट के होम पेज पे ले जाएगा। फ़ैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के पेज पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ैकल्टीज़ अवेलेबल हैं उनकी डिटेल आ रही है, और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए नो चेंज का पेज शो होगा। और यहाँ पर जो है वो होम पेज पे क्लिक करके मैं वापस अपने होम पेज पे आ जाऊँगी। एडमिशन पे जो है वो मैंने काफ़ी सारे एडमिशन में चेंजेस किए हैं। एडमिशन का जो पेज है उसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने साइट वाइड नेविगेशन को ऐड किया है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, मेरिट लिस्ट एंड प्रॉस्पेक्टस और प्रोग्राम फाइंडर को एडमिशन का जो है वो पार्ट बना दिया। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आ जाता है, जिसमें जो है वो यूज़र अपनी सारी डिटेल एंटर करने के बाद उसको रजिस्टर करता है, और इसके साथ साथ यहीं पे वो अब अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फ़ीस स्ट्रक्चर और जो स्कॉलरशिप डिटेल्स और मेरिट लिस्ट और प्रॉस्पेक्टस को भी जो है वो देख सकता है। प्रोग्राम फाइंडर को भी जो है वो एडमिशन्स का हिस्सा बनाने का यही मकसद था कि जो है जो प्रोग्राम्स जिस जिस डिपार्टमेंट के अवेलेबल हैं वो इसी पेज के ऊपर हैंडल हो जाए। तो यहाँ से ये जो है वो हम अपने होम पेज पे वापस जाते हैं। उसके बाद जो है न्यूज़ एंड मीडिया, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। डाउनलोड्स का एक टैब मैंने ऐड किया है। डाउनलोड के टैब में मैंने वो तमाम डाउनलोड जो कि जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी डाउनलोड्स जो हैं वो उनको यहाँ पे हैंडल किया गया है, ताकि जो है वो एक ही जगह पर तमाम डाउनलोड्स अवेलेबल हो जाएं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस के टैब को जो है वो मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। आगे जो है जो नेक्स्ट जो मैंने नीचे मेन मेन पेज पे चेयरमैन मैसेज को मेन पेज का हिस्सा बनाया है, तो उसमें चेयरमैन मैसेज में मैंने जो है वो काफ़ी चेंज किया है। रेक्टर मैसेज, मिशन एंड विजन, हिस्ट्री और फैक्ट्स को जो है वो इसका हिस्सा बनाया है चेयरमैन मैसेज के पेज का। यहाँ पर चेयरमैन का मैसेज को शो किया है, साथ चेयरमैन की पिक्चर ऐड की है और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चेयरमैन भी ऐड किया है, ताकि जो है वो उसकी क्वालिफिकेशनल डिटेल ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैंडल की गई हैं। जब हम रेक्टर मैसेज पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह जो है वो रेक्टर मैसेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता है, और जो है वो सारी उसकी डिटेल भी हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाती है। अब या इसी तरह आगे फिर कैंपसेस डिटेल है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हम अबाउट यूआरएल से भी जो है वो कैंपसेस को देख सकते हैं, और यहाँ पर और कैंपसेस का जो पिक्चर है इससे भी जो है वो हम अपने चारों कैंपसेस को विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्चुअल टूर ऑफ यूओएल।
वर्चुअल टूर ऑफ यूएल को भी मैंने मेन पेज का हिस्सा बनाया है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी के पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो 360 व्यू में देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये एज़ इट इज़ जो है वो एज़ इट इज़ इसको ऐड किया मेन पेज पे, होम पेज पे। आगे अप्लाई ऑनलाइन रिज़ल्ट और प्रीवियस मेरिट लिस्ट का जो टैब है उसको भी जो है वो होम पेज में हैंडल किया गया है, ताकि जो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी जगह पे किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको जो है वो इजी रहे इसको जो है वो मेन होम पेज से फाइंड आउट करना। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो वही जो पहले फॉर्म मैं दिखा चुकी हूँ वो एडमिशन फॉर्म हमारे सामने शो होता है, उसके साथ साथ उसकी पूरी एडमिशन से रिलेटेड तमाम डिटेल्स को एक ही पेज के ऊपर जो है वो हैंडल किया गया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी हाइलाइट्स जो हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं मैंने किया, लेकिन उसको जो है वो होम पेज पे शो किया गया है। फिर आगे अपकमिंग इवेंट्स और जो है हर इवेंट की जो है वो एक पिक्चर यहाँ पे शो की गई है और उसके साथ उसकी डेट और टाइम शो किया गया है। और साथ साथ जब हम उसकी डिटेल देखना चाहेंगे, लेकिन तो जो है वो हमें उसकी डिटेल दिखाएगा, लेकिन उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं वो भी होम पेज का हिस्सा उसको बनाया है, ताकि जो है वो कोई जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो हमारे सामने आ जाए। उसके बाद मिशन एंड विज़न को भी होम पेज पे जो है वो मैंने शो किया है और साथ डेट ऑफ़ क्रिएशन जो है वो भी होम पेज पे जो है वो उसको भी होम पेज का हिस्सा बनाया है। उसके साथ-साथ जो है यहाँ पर प्रोग्राम फाइंडर जो है और साइन इन टू न्यूज़लेटर वो भी जो है वो होम पेज पे उसको मैंने मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पेज मैंने चेंज किया है वो है एक्रीडिटेशंस का पेज है। जब हम एक्रीडिटेशंस पे जाते हैं तो वो पहले उसमें कोई भी जो है उन्होंने सिर्फ लोगोस दिए हुए थे और उनके नाम शो किए हुए थे। लेकिन मैंने जो है वो एक्रीडिटेशन की डिटेल और उसके साथ-साथ ईयर ऑफ एक्रीडिटेशन जो है वो भी इसके साथ जो है वो मेंशन किया है कि कौन से ईयर में कौन सी एक्रीडिटेशन को जो है वो इन्होंने अचीव किया है यूनिवर्सिटी ने, और उसके साथ-साथ ये सारी उनकी डिटेल जो है वो नीचे शो हो रही है। मिशन एंड विजन हिस्ट्री और फैक्ट को भी एक्रीडिटेशन का ही हिस्सा बनाया गया, इसी पेज पे शामिल कर दिया गया, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। उसके बाद जो है एंड पे ये इम्पॉर्टेंट जो लिंक्स थे उनको जो है वो मैंने एंड पे शो किया है, जैसे एकेडमिक्स है, हिस्ट्री है और लीगल एंड सर्विसेज और फैक्ट्स है, और उसके साथ साथ यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स को भी यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, ताकि जो है वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन को यूज़र विज़िटर को आसानी हो यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन गेट करने में। और इनमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद जो है अब जो है ये आती है एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स की बारी। मैंने अपनी जो है ये रीडिज़ाइनिंग वेबसाइट ये मैंने मेल की थी सैयदा अनीका बुखारी को, जिनका रोल नंबर है 30। सैयदा अनीका बुखारी ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी सम क्विक लिंक्स इन माय वेबसाइट। आई एक्सेप्ट हर सजेशन, और मैं इसमें अपनी वेबसाइट के होम पेज में कुछ क्विक लिंक्स भी ऐड करना चाहूँगी, ताकि इन्फॉर्मेशन को ईज़िली जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तक जाया जा सके। उसके बाद उन्होंने जो है वो एक और सजेशन दी कि देयर शुड के 2 लिंक्स हैं होम पेज पे जाने के लिए, तो आई डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ द अदर लिंक इज़ एक्सेसिंग फॉर द मेन वेबसाइट ऑफ सब कैंपस। ये जो लिंक जो नीचे शो किया गया है इसमें ये एक्चुअली जो है ये आपको अगर पाकपतन कैंपस है तो पाकपतन कैंपस की वेबसाइट पे लेके जाएगा, अगर गुजरात कैंपस है तो गुजरात कैंपस की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जबकि ऊपर वाला होम पेज का जो लिंक है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के होम पेज पे लेके जाएगा। सेल्फ क्रिटिक हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा होता है। तो अगर जो है वो मैं इसमें मोर मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ ऐड करती तो मेरी वेबसाइट शायद इससे ज़्यादा जो है वो बेटर होती। लाइब्रेरी जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी बेसिकली जो है उसको मुझे ऐड करना चाहिए था, जो मैंने होम पेज पे ऐड नहीं की। उसके साथ साथ स्टूडेंट सर्विसेज और एलएमएस का जो है वो भी पोर्शन मुझे एक टैब जो है वो देना चाहिए था, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता कि वो डायरेक्टली उस टैब पे क्लिक करके अपने एलएमएस को एक्सेस कर सकते थे। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेल का जो है वो भी एक जो है वो टैब ऐड करना चाहिए था होम पेज पे।
और पिक्चर रेज़ोल्यूशन को मज़ीद बेहतर करके जो है वो मैं वेबसाइट की क्वालिटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।